سیلاب کی تباہ کاریاں، جہاں شہر آباد تھے وہاں پانی ہی پانی۔ راجن پور ڈوب گیا، شہر دریائے بیٹ کا منظر پیش کرنے لگا۔ دیگر مسائل نے بھی متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ غائب، خوراک پہ بھی قلت۔ بچوں کے بیمار ہونے کے باعث مائیں پریشان، سروں کی چھتیں پانی کی نظر۔ متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ڈیرہ قاضی حق کے قبائلی علاقوں کا 11ویں روز بھی زمینی راستہ بند۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت توسا روڈ سے تودے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے مزید 6 ڈیم ٹوٹ گئے۔ زیارت پشین اور مستون کے علاقوں میں کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ مواصلاتی نظام درہم برہم۔ خرابی موسم کے سبب عمران خان پرویز الہی کا دورہ رجحان ملتوی ہو گیا۔ نصیر آباد میں بولان قومی شاہراہ پر پنجرہ پل سیلابی ریلے سے تباہ۔ عیدی رضاکاروں نے پانی میں پھنسے 400 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا۔ بلوچستان میں سیلاب سے 1000 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں متاثر، شہروں کا آپس میں رابطہ منقطع۔ صوبے میں مجموعی اموات کی تعداد 241 ہو گئی، جانور اور قیمتی املاک تباہ، پیارے ایک دوسرے کی تلاش میں۔ سندھ کے شہر مورو میں وڈیروں کی بے حسی انسانوں کو چھوڑ کر گنے کی فصل بچانے میں لگ گئے۔ سیلابی ریل آبادی میں چھوڑ دیا۔ پانی کا راستہ روکنے کے لیے آٹے کی بوریاں رکھ دی گئیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں۔ بااثر افراد کی زمینیں بچانے کے لیے آٹے سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے کا ایک ٹریک پانی میں مکمل ڈوب چکا ہے۔ سیلابی ریلیں نوشہرہ میں داخل، سکولز، اسپتالوں اور گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع۔ علاقہ مکینوں سے گھر پہلے ہی خالی کروائے جا چکے تھے۔ مزید شہریوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری۔ نوشہرہ پولیس لائن بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئی۔ جمعہ کی رات 11 بجے کے قریب 4 کے قریب منڈا ہیڈ ورکس سیلابی پانی سے ٹوٹ گیا تھا۔ دریا پنچگوڑہ میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ٹھٹھہ میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریاں جاری۔ تحصیل گھوڑا باری، میرپور ساکرو اور ٹھٹھہ کے ہزاروں گاؤں بارش سے متاثر ہو گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر، انتظامیہ مدد کرنے میں ناکام، لوگ دھرنے دینے پر مجبور۔ صوفی شاعر بابا بلے شاہ کے عرس کے تقریبات قصور میں جاری۔ زائرین نے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تقریبات میں بھرپور شرکت کی۔ عارفانہ کلام سن کر فیض حاصل کرتے رہے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر اور میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں سوات کے مختلف مقامات پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 15 افراد جاں بحق۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تباہ کن سیلاب سے 130 کلومیٹر سڑکیں، 15 رابطہ پل مکمل اور جزوی طور پر 100 سے زائد مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ۔ 50 کے قریب ہوٹلز اور ریسٹورانٹ بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ مزید نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ٹھٹھہ میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ تحصیل گھوڑا باری، میرپور ساکرو اور ٹھٹھہ کے ہزاروں گاؤں بارش سے متاثر ہو گئے۔ ہزاروں افراد امداد کے منتظر ہیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹھٹھہ کے مقام سے دریائے سندھ میں اس وقت 3 لاکھ سے زائد کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ انتظامیہ متاثرین کی مدد کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی اور آلودہ خوراک کے باعث ہیپاٹائٹس، ہیضہ، ڈینگی، ملیریا جیسے امراض کا خدشہ بڑھنے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں مصروف۔
मुतासरीन का कहना है कि मुतलका हुकाम पानी के बायस पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम करें। मुतासरीन का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सियासी लोग उन्हें कि सारी मदद वास्ते आवन फौरी आवन आते इनको बदवावन ताकि मौजे 8-9 मौजे बच सकें। ये सारे लोग खड़े बिल्कुल थक चुके हैं, काफ़ी अरसे करने काम करते दरख्त काटते मिट्टी दे देते कई वो सारे लोग हिम्मत जवाब दे चुकी है। अस अपील करें मेहरबानी करते सारी मदद वास्ते कोई ना कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा या जो सियासी लोग हैं या कोई भी मुखैर हजरात आते ही जाते मदद करें ताकि लोग बच सकें। मेहरबानी। छोटे छोटे मेरे कमाने वाला कहानी मेरा घर वाला बीमार है, अस्पताल है, ना मेरे को राशन मिले ना मेरे को टेंट लाइट ने मेरे जही ढाई घर हर चीज बच्चे में देखो ये लकाज खड़े मेरे को कुछ नहीं मिले। मेरी ये चुपड़ी है मेरे बच्चे में खत्ते थे बेटा थे अमाम तेरे हमदन वो रोड लगे मैंने साकू कैसे नहीं गिना ना साकू दीती ना अल्लाह वास्ते जरा कोई थी सके साकू दे। मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, मेरे घर वाला बीमार है, जो इमदाद थी सके टेंट ला दे सको अल्लाह वास्ते जरी कैसे थी सके साकू रात भी 11 बजे 12 बजे आने खदमात यूनियन काउंसिल खदमात 8 मौज यूनियन काउंसिल हीरे वेजरा प्लाट जारी छाकड़े तैयब ब्रांड का ना है ये कोई साकने नहीं आया कहीं कोई सियासी बंदा ही वेले तक नहीं आया। असा बुढ़े पे मरदे पे अपनी मदद 3 लाख का मैं काम कराई करा इन लोग इमदाद दी ना के हम साए असा को बच्चे बनू और चेंदा आंदे सारे अगर ए तो लोड पे ना सारे बच्चे लोड़ी पे घर से तो खड़े। कंदकोट के गांव पीर बख्श पंगवार में बारिश का पानी जमा होने के बायस मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। 50 से ज्यादा खवातीन और बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया। मर्दान में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए कैंप का क़याम। इंतज़ामिया की तरफ से सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स में कैंप कायम किया गया। डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह आरिफ का स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स में कायम कैंपों का दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कैंप में मुतासरा 9 ख़ानदान मौजूद, मजमूई तादाद 47 है। मुतासरा ख़ानदानों का ताल्लुक ज़िला नौशहरा से है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। मर्दान में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए कैंप का क़याम। इंतज़ामिया की तरफ से सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में कैंप कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह आरिफ का स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में कायम कैंपों का दौरा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कैंप में मुतासरा 9 ख़ानदान मौजूद हैं। मजमूई तादाद 47 है। मुतासरा ख़ानदानों का ताल्लुक ज़िला नौशहरा से है। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का जिला लसपेला के इलाके लाखड़ा का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर GOC गवादर कोर कमांडर भी हमराह थे। GOC ने मुतासरा इलाके में अवाम को दरपेश मसाइल और पाक फौज के इमदादी इक़दाम के बारे में आगाह किया। कोर कमांडर ने कहा कि इस वक्त मुल्क का मुश्किल से दो चार है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत, सिविल इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान मदद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कोर कमांडर ने पाक फौज की जानिब से कायम करदा रिलीफ और फ्री मेडिकल कैंप्स का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर बकर खुरम शहजाद का मुतल्लिका अफसरों के हमरा सुपर बंद का तफसीली दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 32 किलोमीटर के बंद स्ट्रक्चर पर कहीं भी कटाव है तो इसको भारी मशीनरी के जरिए फिलफौर भर दिया जाए। इस वक्त बकर में 5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सूरत हाल तसल्ली बख्श है। एक्सियन आपाशी मेरी मौजूदगी में तमाम भारी मशीनरी को इस्तेमाल में लाएँ। स्ट्रक्चर की मजीद मजबूती का काम अपनी निगरानी में मुकम्मल कराऊँगा। आपको यहाँ पर बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बकर खुरम शहजाद का मुतल्लिका अफसरों के हमरा सुपर बंद का तफसीली दौरा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 32 किलोमीटर के बंद स्ट्रक्चर पर कहीं भी कटाव है तो उसको भारी मशीनरी के जरिए फिलफौर भर दिया जाए। इस वक्त भक्कर में 5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सूरत हाल तसल्ली बख्श है। एक्सियन आपाशी मेरी मौजूदगी में तमाम भारी मशीनरी को इस्तेमाल में लाएं। स्ट्रक्चर की मजीद मजबूती का काम अपनी निगरानी में मुकम्मल कराऊंगा।
सूबाई वज़ीर जामियात और ज़िला बदीन के निगरान इस्माइल राहू का दौरा। LBOT के ओवरफ्लो होने से इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट कर दिया। इस मौके पर इस्माइल राहू का कहना था कि LBOT के सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल करने का इंतज़ाम कर लिया गया है। इनखला की सूरत में नकलो हमल, खुराक और तिबी सहूलियात के साथ कैंप भी कायम किए गए हैं। पेशावर में पेस्को हेडक्वार्टर में इंजीनियर अमीर मुकाम मशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी और अवामी उमूर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। इमरजेंसी के नफाज का ऐलान, सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील को यकीनी बनाने की हिदायत। अमीर मुकाम ने हर किस्म की तातीलात को मनसूख कर दिया। इस मौका पर अमीर मुकाम का कहना था कि हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने बिजली की तरसील की कोशिशों में काम करने वाले मुलाज़मीन की तारीफ की। लकी मरवत में सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के खिलाफ एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि बारहा इंतजामिया से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। रिलीफ की फराहमी के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए जा रहे। सेक्रेटरी इतलात और ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा अरशद खान ने सवात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। रिलीफ और बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। इलाके 5.5 लाख क्यूसेक सैलाबी रेले पानी की लपेट में आए हुए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट چې زموږ کوم دی نو دا زموږ د حکومت یو ټیک ټاک یو باقاعده محکمه ده. د هغې دپاره د ډسټرکټ لیول پورې خلک موجود دي. نو زموږ د هغې طریقهکار دی چې په ډیزاسټر مینجمنټ کې اولنی سټپ دی چې کوم خلک په دغه سخته کې ګیر دي، اول د هغه ځای نه هغه راوباسو چې د هغوی ژوندونه بچ شي. هغې نه بعد بیا مونږ ګورو چې یاره که هغو ته خوراک کمی چې هغو ته ورسو. درېیمه خبره بیا دی چې کوم د رابطې پلونه یا سړکونه یا د چا کورونه وران شوي چې هغو ته تنبور کړو، هغه روډونه بحال کړو، چې کوم هغه مطلب خټې او دای راوړي چې هغه پاکې کړو. نو په هغې ټولو باندې کار شروع دی. میونسپل کمیټۍ، TMAs، WCC ټول ایڈمنسټریشن په هغې باندې لګیا دی. کوشش مونږ کړی دی. پرون ماته کمشنر صاحب وایي چې ایون کوم علاقې کې چې د سیلاب تباهکاري کومه ده لکه بونیر، هغه علاقونه هم سټاف راغوښتی دی او تاسو وینئ چې تاسو دا علاقه ټول په 2-3 ورځو کې بحال شوه. نو کوشش کوو انشاءالله. गाजी में तरबेला डैम से पानी के अखराज की सलाहियत 15 लाख क्यूसेक। डैम इंतजामिया दिन रात ड्यूटी पर मौजूद। स्कर्दू से तरबेला तक पानी की नकलो हरकत मॉनिटर की जा रही है। इस वक्त डैम से पानी का अखराज 5 लाख क्यूसेक से भी कम है। इर्द गिर्द मुकीम आबादियों के लिए खतरा उस वक्त होगा जब तरबेला डैम से पानी का अखराज 8 लाख क्यूसेक तक पहुँच जाएगा। दराए कुर्म भी बिखर गया। 40,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है। सुरानी, झंडूखेल, अलीखेल और शमशी खेल समेत मुख्तलिफ इलाके ज़रियाब लोगों की नकल मकानी शुरू। मज़ीद तफसीलात बन्नू से फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बन्नू में 2 बड़े दरियाओं कुर्रम और टोची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दरिया कुर्रम का 40,000 क्यूसेक का रेला बन्नू से इस वक्त गुजर रहा है। दरिया कुर्रम के आसपास के लोगों ने नकली मकानी शुरू कर दी है और कुर्रम पुल के हिफाजती पुश्ते टूटने से पुल को बंद कर दिया गया है। इस तरह दरियाई टोची के किनारे मुतादिद इलाकों के फसलों को नुकसान पहुंचा है और वहां सब्जियों और चावल के तैयार बागात तबाह हो गए हैं। बन्नू शहर के मुजाफाती इलाकों में बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके वजह से कई घरों के कमरे और दीवारें गिर गई हैं, जबकि 2-3 रोज़ से इन इलाकों का राबिता शहर से कट गया है, जिसकी वजह से इन इलाकों में अशियाए खुर्दनोश की कमी का लोगों को सामना है। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि उनको जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए और हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है कि उनके नुकसानात का इजाला किया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नारोवाल बैंक डकैती के दोनों मुलजिम गिरफ्तार। मसरूका रकम 90 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। इस मौके पर DPO सईद अनवर कंगरा ने कहा कि पुलिस अवाम का हिस्सा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ٹریس کریں، ملزمان کو گرفتار کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کے خوبصورت لوگوں کا یہ خوبصورت شہر ہے، ہم اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ رات کو سکون کی نیند سوئیں، ہم جاگیں گے. اور انشاءاللہ ہم آپ پہ کوئی اعتراض ہے کہ اور اپنی طرف سے ایمانداری سے، نیک نیتی سے اوکاڑا میں تھانہ چورستہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ڈکیت گینگ گرفتار، موٹر سائیکل برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی موٹر سائیکل چور گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا. گرفتار ملزموں کی شناخت محمد خان، صفدر، عامر، رضوان اور حیدر کے ناموں سے ہوئی ہے. تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. ایس پی انویسٹیگیشن خالد تبسم کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری رہے گا. قصور میں تھانہ تھے شیخم کی کارروائی. ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے 3 کارندے گرفتار کر لیے گئے. ملزموں سے نقدی، 3 موٹر سائیکل، 3 موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ڈکیت گینگ کے سرغنہ سجاد اور بلا نے دیگر ساتھیوں پر مشتمل ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو دوران واردات مزاحمت پر قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اوکاڑا میں فوڈ اتھارٹی ٹیم نے ملاوٹی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی. ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز علی خرم کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ بائی پاس پر ناکہ بندی کے دوران 2 دودھ بردار گاڑیوں سے 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا. ایک گاڑی سے 2100، دوسری سے 2000 لیٹر ملاوٹی دودھ سپلائی کیا جا رہا تھا. ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی، کھاد کی ملاوٹ پائی گئی. آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کریں. اوکاڑا میں فوڈ اتھارٹی ٹیم نے ملاوٹی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز علی خرم کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ بائی پاس پر ناکہ بندی کے دوران 2 دودھ بردار گاڑیوں سے 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا. ایک گاڑی میں 2100، دوسری میں 2000 لیٹر ملاوٹی دودھ سپلائی کیے جا رہا تھا. ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی، کھاد کی ملاوٹ پائی گئی ہے. اوکاڑا پولیس کی کارروائیاں جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں. اوکاڑا آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او خالد محمود کے احکامات کی روشنی میں اوکاڑا پولیس نے 2 بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کے لیے گھیرا تنگ کر دیا. پہلی کارروائی میں تھانہ صدر پولیس نے ڈکیتی کی نیت سے چھپے 3 کس ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزم محمد اویس اور ارسلان عرف حاجی اسد علی سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے اور ملزمان نے دوران انٹروگیشن کے دوران متعدد واردات کا انکشاف کیا. ملزمان سے 2 عدد چھینی گئی موٹر سائیکل اور 5 عدد موبائل فون بھی برآمد کر لیے گئے. ملزمان سے مزید برآمدگی کی توقع ہے. ملزمان سے مزید برآمدگی کے لیے شناخت پیڈ کے لیے بھجوا دیا گیا. دوسری کارروائی میں ڈی ایس پی انعام الحق رینالہ سرکل کی زیر نگرانی ملک محمد ارشد ایس ایچ او نے اپنی ٹیم کو مجرمان اشتہاری A کیٹیگری کو گرفتار کر لیا. ملزم محمد سرور جو کہ مقدمہ نمبر 395 میں مجرم اشتہاری تھا، جس کو مقدمہ ہزا میں حسب ضابطہ گرفتار کر لیا گیا. ملزم سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا، جس کے خلاف مقدمہ تھانہ صدگرہ میں درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند تھانہ کروایا گیا. کیمرہ ٹیم کے حافظ آباد میں تھانہ کسوکی کی حدود میں گھنیا کے رہائشی نازیہ نامی خاتون اور اس کے خاوند کو 62 افراد کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. نازیہ بی بی کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور دباؤ ڈالتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر صلح کروا لی. اب پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. مجھے اور میری فیملی کو خطرہ ہے. قانونی کارروائی کے لیے خاتون ٹراما سینٹر میڈیکل لینے پہنچ گئی.
शाहकोट में तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर बजरी से लोड ट्रक से टकरा गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 का अमला जाए हादसा पर पहुंच गया। हादसे के नतीजे में एक बच्ची और 35 साला शख्स जाम बहक हो गया। ख़वातीन और बच्चों समेत 15 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको अलाइट हस्पताल फैसलाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी डोक हस्सू में निजी फलाही तंजीम की जानिब से कब्रिस्तान में सफाई और झाड़ियों की कटाई का अहतमाम किया गया, जिसमें अहले इलाका ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से नोमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी डाहोक हस्सू के कदीम कब्रिस्तान में अलमदद वेलफेयर कमेटी की जानिब से कब्रिस्तान की सफाई और वहाँ पर मौजूद झाड़ियों की कटाई का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के हर उम्र के फ़र्द ने अपना हिस्सा शामिल करते हुए अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक वाइस चेयरमैन इरफान अजीम मुगल, फलक शेर और असगर राजपूत ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुतलका महकमे की नाअहली की वजह से कब्रिस्तान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, जबकि इस ज़मन में सालाना फ़ंड रखे जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड कहाँ जाता है इसका कोई पता नहीं, जिस पर मुतलका महकमों के आला अफसरान को फौरी नोटिस लेकर इस पर तहकीकात की जाए। कैमरा मरकजी उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम टोबा टेक्सिंग में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तमाम मसालिक के उलमा ने शिरकत की। देखते हैं नवीद मूसा की ये रिपोर्ट। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान में तमाम मताए फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद में बाहमी हमआहंगी और यकानक्तो भाईचारे को फ़रोग़ देना था। कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालिक के उलमाए दीन ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल मौलाना ज़ाहिद महमूद कासमी थे। जिला कौंसिल हाल में मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ज़ाहिद महमूद कासमी का कहना था कि उलमा इकराम मुल्क में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रहे हैं और पाक फौज की क़याम अमन की कोशिशों को सलाम पेश करते हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान को आलमी ताकतों से कई खतरात लाक हैं, जिन्हें पाक फौज नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल और हर मसालिक उलमा पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। इस्लामबज़दगान इलाकों में मुतासरीन की अमदाद और इनकी बहाली के लिए पाक फौज की काविशें काबिल सताइश हैं और इस्लामबज़दगान की मदद के लिए तमाम कौम को यकजा होकर हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से मौलाना तलहा अब्बासी, मौलाना अब्दुल समद, अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी, मौलाना हमीदुद्दीन। नारंग मंडी की यूनियन काउंसिल हिचड़ के मकीन सरापा एहतजाज। कहा स्कूल में ग्राउंड ना होने से तलबा को परेशानी का सामना है। इस हवाले से चौधरी अली भट्टी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ਇੱਥੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਦਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾए। इस वक्त सर हम गवर्नमेंट हाई स्कूल हचड़ की ग्राउंड में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे जो है वो मुंजी लग चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों की जो खेलों की सरगर्मी है वो महदूद हो गई हैं। इधर तकरीबन 10 से 15 गाँव के बच्चे हैं जो वो खेलने के लिए आते हैं और जब ये रेनी सीज़न होता है या पानी आ जाता है, फसलें लग जाती हैं, तो बच्चे जो हैं उनके लिए ग्राउंड कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये जो 10 देहात हैं इनमें एक भी ग्राउंड नहीं है इस ग्राउंड के अलावा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है राना तनवीर साहब से कि ये जो सरकारी ज़मीन है
ज़िलाई गवर्नमेंट के अंडर है, इसको जो है ना इस ग्राउंड का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चे जो है ना उनकी सरगर्मियाँ जो है मुस्बत सरगर्मियाँ हों और वो गलत चीज़ों से, नशे से, दूसरी चीज़ों से बचे रहें। और हम इंशाल्लाह आपसे वादा भी करते हैं कि आपको पॉलिटिकली भी जो भी मामला हैं, जो बंदा हमारा ये वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू के इखलाक हाशमी की रिहाइशगाह पर आमद। नून लीग कराची के सदर सलमान खान महबूब इलाही ने इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू की मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची के सदर इखलाक हाशमी की रिहाइशगाह पर आमद। इखलाक हाशमी ने लेबर विंग के अहदेदारों के हमरा इनका इस्तकबाल किया, जबकि मुस्लिम लीग नून कराची के सदर सलमान खान भी इनके हमरा मौजूद थे। इखलाक हाशमी ने अब्दुर्रहमान कांजू को कराची में लेबर के मसाइल से आगाह किया, कराची में लेबर के लिए किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया। अब्दुर्रहमान कांजू ने मुस्लिम लीग नून लेबर विंग की काविशों को सराहते हुए कहा कि लेबर के मसाइल के हल के लिए जो भी इक़दाम हो सकते हैं उठाए जाएंगे। जबकि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई, जिसमें लेबर पर इखलाक हाशमी ने कहा कि लेबर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। आखिर में मेहमानों को सिंध की सकाफत। DPO सरगोदा तारिक अजीज ने प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जराइम के खात्मे के लिए मीडिया का पुलिस के साथ ताउन अज़हद ज़रूरी है। मीडिया को जराइम की निशानदही और मजलूम की दादरसी के लिए कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर महर आसिफ हनीफ, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहसिन ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर मेंबरान प्रेस क्लब की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मुल्तान में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस मुल्तान खानेवाल अब्दुल हकीम मोटरवे M4 पर हालिया शजरकारी मुहिम में फलदार पौधों की शजरकारी का आगाज। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंटर 2 जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर आतफ चौधरी की जानिब से हालिया सीजन में फलदार पौधों की शजरकारी जारी। उन्होंने DSP कमर शहजाद भट्टी के साथ सेक्टर ऑफिस और बीट नंबर 21 में पौधे लगाए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हम सेक्टर M4 में फलदार प्लांटेशन ड्राइव का आगाज पहले ही कर चुके हैं। आज भी इसी तसलसल में फलदार पौधे लगाए गए हैं। सेक्टर M4 के तमाम इंटरचेंजेस पर कसीर तादाद में फलदार पौधे वीकली बुनियादों पर लगाए जाएंगे ताकि मोटरवे M4 को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त माहौल दोस्त होते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करने के साथ साथ परिंदों के लिए सायादार घोंसले भी फराहम करते हैं। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत को भी कम करते हैं। DSP कमर शहजाद भट्टी ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना है। इस मौका पर उनके साथ सेक्टर ऑफिस में बीट नंबर 21 के मुताबिक अफसरान भी शामिल थे। उन्होंने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए और वतनी जिला भावलनगर में पैदा होने वाले बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के उसकी तकरीबात कसूर में जारी हैं। ज़ायरीन ने नजराना अकीदत पेश करते हुए भरपूर शिरकत की, आरफाना कलाम सुनकर फैज़ हासिल किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, 1200 के करीब अहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जहां वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरावाला दौरे जदीद में भी ट्रॉमा सेंटर से महरूम है। एमरजेंसी की सूरत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लाए जाने वाले मरीजों को मुल्तान और बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज खान से। जी एजाज खान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में और जलालपुर पीरवाला की आबादी जो है तकरीबन 7 से 8 लाख है। और अगर यहाँ पर सहूलियात की बात की जाए तो जलालपुर पीरवाला को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तो दे दिया गया है, लेकिन दौरे जदीद में ट्रामा सेंटर से जलालपुर पीरवाला की आबादी को महरूम रखा जा रहा है। और मैं बात करूँ किसी एमरजेंसी की सूरत में या किसी बड़े हादसात की सूरत में तो यहाँ के जितने भी मरीज़ जलालपुर पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर आते हैं तो उनको मुल्तान या बहावलपुर 120 किलोमीटर के फासले पर रेफ़र किया जाता है। मज़ीद मेरे साथ ऐसे ही शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी
جی بالکل، ہماری جلال پور پیر والا تحصیل جو ہے جی یہ تقریباً 8 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہاں پر ہمیں آج تک ٹراما سینٹر نہیں دیا گیا. تو جب یہ جیسے ہی ہمارے ہاں کوئی المناک واقعہ ہوتا ہے، جیسے حال ہی میں ایک موٹر وے پہ المناک واقعہ پیش آیا، تو ٹراما سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ملتان یا بہاولپور جانا پڑتا ہے، جو کہ راستے میں ہی اموات ہو جاتی ہیں. تو ہماری اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں جلال پور میں ٹراما سینٹر دیا جائے. جی یہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے، مزید ایسی اور بھی میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ٹراما سینٹر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. ٹراما سینٹر کی وجہ سے نا ہم بہت ہی پریشان ہیں بھائی جان. حالانکہ تھوڑا جب ایمرجنسی کوئی بھی ہو جائے نا تو ہمیں بہت مسئلہ بنتا ہے. یہاں پہ بہاولپور ملتان بھیج دیتے ہیں کہ وہ اسی لیے ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ لہٰذا ہمارے بارے سوچا جائے، مہربانی کر کے یہاں پہ ٹراما سینٹر بنایا جائے. تو جی آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ٹراما سینٹر جلال پور پیروالا میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے اور ان سیاسی نمائندوں سے جو یہاں سے منتخب ہوتے ہیں اور جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ ٹراما سینٹر جلد سے جلد یہاں پر جو ہے تکمیل کیا جائے اور جلال پور کی عوام. اعجاز خان جو وقت اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ. برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں. پنجابی کھوج گڑ مصطفیٰ باد میں بھی بلے شاہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر عمر شاہین سے. عمر شاہین آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی سنگر انمول فاطمہ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں یہ جو آج پنجابی کھوج گڑھ میں پروگرام میں آئی ہیں، اس حوالے سے یہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی. اس پروگرام کے حوالے نال میں ہمیشہ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ. ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو یہ پروگرام ہے حضرت دریائے کابل میں وارسی کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. انتظامی افسروں کی نگرانی میں تمام ادارے موقع پر موجود ہیں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں. دریائے کابل میں ورسک کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. انتظامی افسران کی نگرانی میں تمام ادارے دریاؤ کے کنارے علاقے میں موجود ہیں اور دریاؤ کے کنارے آبادی کے انہلاک کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ نے قریبی محفوظ علاقوں میں 4 امدادی کیمپ قائم کیے، جہاں پر اب تک 140 خاندانوں کو منتقل کیا گیا. ان کیمپوں میں متاثر افراد کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. کنارے پر موجودہ آبادی کی ہدایت کی جاتی ہے کہ جلد از جلد انہلاک کو ممکن بنایا جائے. اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر پیشہ شفیع اللہ خان، پولیس محکمہ پولیس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، صوبائی اسمبلی کے اراکین نے بھی مختلف جگہوں کا وزٹ کیا. اس میں میاں گجر، داؤزی اور اسلام آباد کورونا بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی، ریسکیو 1122، محکمہ آبپاشی، ریونیو انتظامی افسران اور دیگر محکموں کے افسران و اہلکار بھی ہمراہ موجود تھے. متعلقہ محکموں کو سیلاب سے متاثر علاقوں میں ریلیف کے کاموں میں بروقت حصہ لینے کی ہدایت جاری کی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر صحت تیمور سلیم جگرا نے بھی کہا کہ اس مشکل وقت میں عمران خان اور ان کی پوری خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. سیلاب سے متاثر اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو بھرپور مدد کی جائے گی. تمام ایمرجنسی ادارے پورے صوبے میں فعال ہے اور لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہے. تیمور جگرا نے صبح سویرے موٹر وے کا دورہ کیا اور سیلاب زدگان موٹر وے پولیس سے ملاقات کی اور نقصانات کا جائزہ لیا. تیمور جگرا نے یقین دلایا کہ حکومت تمام تر وسائل کو استعمال کر کے رہنما پیپلز پارٹی صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے، دشمنی نہیں. بدترین مخالف بھی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایک ہو سکتے ہیں. عمران خان ہو یا کوئی اور، انہیں ساتھ مل کر خدمت کرنی چاہیے. انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سنتے ہیں. اور جو آج جس طرح میں نے شروعات کی ہے اس پہ میں عمران خان پہ یا پی ٹی آئی پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ آج کا میسج جو ایک گڈ ول کا، گڈ جسچر کا ہماری لیڈرشپ نے اور سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے، ہم نے سب کو آفر کیے جی کہ آئیں مل بیٹھ کر اس وقت اس سچویشن میں کریں. اور ہم تو اور ہم نے آفر کیا، ہمارے چیئرمین پیپلز پارٹی نے
केपीके में अपने तमाम पीपल्स पार्टी के वर्करों को कहा है कि जी आप बढ़ चढ़ के सैलाब जदगान की मदद करें। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी कर रही है, पंजाब में कर रही है। इस मौके पे मैं अगर कोई शख्स मतलब गुड जेस्चर पीपल्स पार्टी ने दिखाया है, अगर कोई शख्स उसको वेलकम करता है तो फिर भी वेलकम, अगर कोई शख्स उसको नहीं मानता वो अपनी किसी जिद पे और लाहौर के इलाके वॉल्टन कंटोनमेंट के एरिया में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। बिल्डिंग सुपरवाइजर राजा यासिर की मुबैना सरपरस्ती में कमर्शियल और रिहायशी तामीरात बगैर नक्शे के जारी हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाका वॉल्टन कंटोनमेंट के एरिया में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। बिल्डिंग सुपरवाइजर राजा यासिर की मुबैना सरपरस्ती में कमर्शियल और रिहायशी तामीरात बगैर नक्शे के जारी हैं। लाहौर के इलाका वॉल्टन कंटोनमेंट के एरिया में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। बिल्डिंग सुपरवाइजर राजा यासिर की मुबैना सरपरस्ती में कमर्शियल और रहायशी तामीरात बगैर नक्शा के जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद साकिब भट्ट से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। वार्ड नंबर 1 से 5 तक जा बजा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात बगैर नक्शाजात जारी हैं। बिल्डिंग सुपरवाइजर राजा यासर और दीगर बिल्डिंग चेकर्स की मुबैना मिली भगत से मेन कमर्शियल बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। कोहिनूर न्यूज चैनल को मसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि मेन निशात रोड पर एक निजी बेकरी के 3rd फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन जारी है, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के बाई लॉज के खिलाफ खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मजीद ऐसी कई गैर कानूनी तामीरात मुबैना तौर पर राजा यासर के जेर सरपरस्ती जारी हैं। अहले इलाका ने डीजी कंटोनमेंट बोर्ड से पुरजोर अपील की है कि खुदारा महकमे से काली बेड़ों का सफाया किया जाए। जी साकिब भट्ट अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत डेंगू मुहिम के हवाले से अहम इजलास में बहरिया टाउन के फोकल पर्सन जहां जेब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ज़िला इंतजामिया का बहरिया टाउन इंतजामिया को डेंगू मुहिम में भरपूर साथ देने की वार्निंग। बहरिया टाउन में डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। DC लाहौर का कहना था कि डेंगू पर काबू पाने के लिए बहरिया इंतजामिया को हर सूरत ज़िला इंतजामिया का साथ देना होगा। पीर से बहरिया में 6 रोज़ा डेंगू क्रैश प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बहरिया टाउन की इंतजामिया ज़िला इंतजामिया की टीमों के साथ अपने 100 वर्कर्स देगी। बहरिया टाउन की इंतजामिया डेंगू आगाही को चलाए। बहरिया टाउन में मौजूद खाली प्लाटों को खुसूसी तवज्जो दी जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी के 100 माहिर हशरात तालिब इल्मों को डेंगू मुहिम का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने 10 माहिर हशरात तालिब इल्म बहरिया टाउन में डेंगू टीमों के हमरा मौजूद होंगे। 3 सब रजिस्ट्रार और महकमा एजुकेशन की टीचर्स की ड्यूटियाँ बहरिया टाउन में लगा दी गई हैं। सूबा पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। PP 139 शेखुपुरा में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन को नोटिस जारी। आपको बताएं कि सूबा पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। PP 139 शेखुपुरा में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन को नोटिस जारी कर दिया गया। अली इमरान चट्ठा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डी से जान लेते हैं। अली इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन पंजाब में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर जी 30 अगस्त को राना तनवीर जो वफाकी वजीर हैं इनको तलब कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि जी इन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार बंगू की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग्स में भी शिरकत कर रहे हैं और तरक्याती फंड्स का भी ऐलान कर रहे हैं। अली इमरान चट्ठा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जी लाहौर में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम जारी। समनाबाद जोन के इलाके में 6 टायर की दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाइना चौक का दौरा किया। तफसील जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में जिला इंतजामिया की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम जारी है। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस पर खसूसी फोकस किया जा रहा है। समनाबाद जोन के इलाका में 6 टायर की दुकानों को सील किया गया। अलहम्द टायर शॉप, दानिश टायर शॉप, मलक टायर शॉप, हक नवाज ट्रेडर्स, मोहम्मद नदीम मदीना ऑटोज एंड स्पेयर पार्ट्स को सील किया गया। मुकदमात का इंदराज करवाया गया। दुकानों के बाहर टायर खुले पड़े हुए थे। DC लाहौर का कहना है कि दुकानदारों को टायर दुकानों के बाहर न पड़े होने की हदायत जारी कर रखी
रखी हैं और दुकानों के अंदर पड़े हुए टायरों को लपेट कर रखने की हदायत जारी कर रखी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाइना चौक का दौरा किया। डेंगी सर्विलेंस का जायजा लिया गया। डेंगी बरामद होने पर मौका पर तल्फ करवाया गया। आइंदा के लिए मुहतात रहने की हदायत जारी कर दी। दोबारा विजिट पर अगर डेंगी लार्वा बरामद हुआ तो FIR का इंदराज किया जाएगा। DC लाहौर मोहम्मद अली की हदायत पर डेंगी सर्विलेंस का जायजा लिया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पाक फौज का डेरा गाजी खान और राजनपुर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। फौज पाकिस्तान का डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमों ने मुतासरा इलाके में फंसे मुतअद्दिद अफराद बशमूल ख़वातीन और बच्चों को सामान समेत बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सूरत हाल के पेश नज़र 1 माह से पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज की टीमों ने फंसे हुए 5683 लोगों को अब तक बचा लिया है, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और उनके अमलाक को सैलाबज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। रिलीफ कैंपों में मुकीम लोगों को तैयार खाना, खुश्क राशन, 14,933 पैकेट्स और रहने के लिए 9,298 टेंट तकसीम करने के साथ ज़रूरत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासिरीन में तैयार खाने की तकसीम का अमल भी ज़ोर शोर से जारी है। डीजी खान में फ्लड अस्पताल कायम है। डीजी खान के मेडिकल कैंपों में अब तक 1043 मर्दों, 542 औरतों और 791 बच्चों का इलाज मुआवजा किया गया। आर्मी मेडिकल कैंपों में सेहत की देखभाल की तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। महकमा एक्साइज लाहौर के डायरेक्टर राना कमरुल हसन रीजन C से रीजन B में तैनात एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर तारिक भट्ट और मियां आफ्ताब रहीम का पुरजोश इस्तकबाल, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। आपको बता रहे हैं महकमा एक्साइज लाहौर के डायरेक्टर राना कमरुल हसन रीजन C से रीजन B में तैनात एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर तारिक भट्ट और मियां आफ्ताब रहीम का पुरजोश इस्तकबाल, फूलों का दस्ता भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइश का कहना है कि शाय खुरोनोश की मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए, गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए कार्रवाई की जाए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज ने कहा कि एशिया खुरोनोश की मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिला भर में गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई करें। वो अपने दफ्तर कमेटी रूम में मुनक़्क़िद इजलास की जिला भर के प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा ले रहे थे। इस मौके जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम निशान, प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने हिदायत की तमाम मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सब्जी या फ्रूट मंडी में जाकर फलों और सब्जियों की नीलामी के अमूर की बाकायदगी से मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि दुकानों, मार्केटों और रेडियो एशिया खुरोनोश के नर्ख नुमाया जगह पर आवाज़ा किए जाएँ ताकि सरवीन को खरीदारी के बाद दुश्वारी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नफराती कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हिदायत की कि प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाकायदगी से दुकानों, रेडियो, तजारती मार्केट में जाकर एशिया ज़रूरिया के नर्ख चेक करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम निशान ने प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 19 अगस्त 2022 से 26 अगस्त 2022 तक 1225 दुकानों, रेडियो और दीगर कारोबारी मराकज़ में जाकर एशिया खुरोनोश के नर्ख चेक किए और खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद को मौके पर ही वज़ूई तौर पर 2,46,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। स्थायी अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थानों में खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बाजोड़ में एक हफ्ते से जारी एहतजाजी धरने को इंतजामिया और मुज़ाकराती टीम के जरिए ख़त्म कर दिया गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने बाजोड़ का दौरा करके धरने के मुज़ाकराती सेशन की निगरानी की। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं बाजोड़ से एहसानुल्लाह खान। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी अमन-अमान की बहाली और शहरों के टारगेट किलिंग के खिलाफ कबायली रहनुमाओं और सियासी कायदीन के अमन बहाली के धरने को मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म किया गया।
वफाकी मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल और सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान की सरकर्दगी में ज़िले इंतज़ामिया के हुकाम और मुज़ाकराती वक्त के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिनमें अमन अमान की मुकम्मल बहाली के लिए पुलिस गश्त को बढ़ाने, टारगेट किलर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने, मकतूल शहरियों के कातिलों को गिरफ्तार करने, पुलिसिंग के निज़ाम को मजबूत बनाने, जराइम में मुलविस गिरफ्तार अफराद को अदालतों में पेश करने, पुलिस शहदा को शहदा फेकच देने, इलाके में बदतखूरी की रोकथाम के लिए मजबूत लाएहमल तैयार करने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इब्सी एहलकारों का मकामी पुलिस के साथ मुश्तरका प्लान तरतीब देने पर इत्तेफाक किया गया। धरने की क़यादत करने वाले अमीर जेवीआई मौलाना अब्दुल रशीद ने ज़िले इंतज़ामिया के साथ अमन व अमान की बहाली और शहरों के जान और माल की हिफाजत को नेक शुकून करार दिया और कहा कि अगर 20 दिनों के अंदर मुतफ़िक़ा नुकात पर अमल दरामद न हुआ तो दोबारा सड़कों पर आकर एहतजाज। दारा अरकम स्कूल्स कोगेरा कैंपस में शोबा हिफ्ज़ कुरान के बच्चों का मंसिल क्विज़ मुकाबला हुआ। आपको बताएं कि तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं मियाँ असफर की इस रिपोर्ट में। दारे अरकम स्कूल गोगेरा कैंप्स में शोबा हिफ्ज़ कुरान के बच्चों का मंजिल क्विज़ मुकाबला मुनक्कद किया गया, जिसमें तलबात ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी कारी मोहम्मद इब्राहिम, इंचार्ज शोबा हिफ्ज़ नाजरा साहिवाल रीजन, राय मज़हर इकबाल, डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल गोगेरा कैंपस थे। तकरीब में बच्चों ने बहुत ही शानदार अंदाज में कुरान पाक की तिलावत और सवालों के दुरुस्त जवाबात दिए। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। दारे अरकम इलाका भर में वो वाहिद ब्रांडेड इदारा है जिसमें हिफ्ज़ कुरान की तालीम दी जाती है। तलबा और तलबात की अलग अलग एयर कंडीशनर, क्लासरूम, कारिया और कारी साबान हिफ्ज़ कुरान करवाते हैं। गोगेरा शहर और गिरदोनवा के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दारे अरकम स्कूल की इस कावश को खूब सराहा। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास अमन कमेटी के मेंबरान, उलमा इकराम और अफसरान ने शिरकत की। चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स दाता दरबार के मौका पर इंतज़ामात के हवाले से बातचीत की गई। DC लाहौर का कहना था कि शहर में अमन के क़याम और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में अमन कमेटी का अहम किरदार है। उलमा इकराम और अमन कमेटी के मेंबरान डेंगू मुहिम और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर में डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। उलमा इकराम ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की आगाही मुहिम में साथ दें। डेंगू से बचाव के हिफाजती इक़दाम के हवाले से शहरियों को आगाही दें। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सामान भिजवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का साथ दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वेब के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।